Welcome all in economics class. Today we are starting our next chapter, chapter number 13, market equilibrium under perfect competition. As we all know, in the perfect competition, price is decided in the market and a firm is a price taker, not a price maker. So how this price decided in the market? This is decided by the forces of demand and supply. So by using the forces of demand and supply, market decides the market equilibrium, and accordingly the equilibrium price has determined by the market. So what is market equilibrium? Market, we all know, it is the mechanism, or we can say arrangements, where all the buyers and sellers come in the contact and they do different kind of transactions. And equilibrium, you all know, equilibrium is the state of balance. We can refer equilibrium as a state of balance. तो वो स्टेट जहाँ पर मार्केट बैलेंस में आ गया है, that is called market equilibrium. So market equilibrium is the situation where market demand is equals to market supply. वो सिचुएशन जहाँ पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर हो जाता है, बोथ बिकम इक्वल, देन दैट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम. मार्केट इक्विलिब्रियम हम उसे कहते हैं. ठीक है. नाउ market demand, what is market demand? Chapter this market equilibrium is fully related to the demand chapter and the supply chapter. So you all know the law of demand and law of supply. According to that, market demand क्या होती है? We already have read. It is the sum total of demand of all the buyers in the market for a commodity, and market supply is the sum total of all the supplies by all the producers of a commodity. तो सारे producers मिलकर के जितनी भी total supply कर रहे हैं, that is market supply, and सारे buyers जितनी भी demand कर रहे हैं एक market में, that is उन सब हम buyers A, buyer 2, buyer 3, buyer 4, इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं, then we get the market demand. तो ये सम टोटल है डिमांड का और सम टोटल है सप्लाई का. तो जब हमारा मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे की इक्वल हो जाते हैं, एट दैट पॉइंट देयर विल बी इक्विलिब्रियम इन द मार्केट. वहीं पर उसी पॉइंट पर मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट we can determine the equilibrium price and equilibrium quantity. By using this example, we can explain market equilibrium. As I told you, market equilibrium is the situation where market demand is equals to market supply. तो यहाँ पर हम देखते हैं, this is the price. Price is given 2, 4, 6, 8, 10, continuously increasing. And we all know there is the price और डिमांड में हमें पता है क्या रिलेशन होता है. प्राइस एंड डिमांड, देयर इज इनवर्स रिलेशन. व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस. तो हम यहाँ देखेंगे मार्केट डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ड्यू टू विच वी कैन सी when price is 2 market demand is 100, when price become 4 market demand become 86, 60, 8, 40 and 10, 20. जैसे जैसे प्राइस हमारी बढ़ती जा रही है, डिमांड कम होती जा रही है, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड मार्केट डिमांड और डिमांड. वी ऑल नो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड वी हैव read. Similarly, we have read in the law of supply, in the supply chapter, that there is the direct relation between price and quantity supplied. तो मार्केट सप्लाई में और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है. एज प्राइस इंक्रीजेस, producer wants to supply more and more. Why? Because their profit margin continuously increases with the increase in the price. तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, मार्केट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस 20, 40, 60, 80 and 100. When we
see here at the price 6, you can see 6 जब प्राइस है, then market demand is 60 as well as market supply is also 60. So this is the condition of market equilibrium. हम इसे market equilibrium कहेंगे. ये हमारा equilibrium है, ये हमारा स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ मार्केट है, जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए. इक्विलिब्रियम है, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई. So this is the point of market equilibrium, and 6 is the price of equilibrium. So we call it equilibrium price. Quantity, equilibrium quantity is 16. So and before this point you can see 6 price से कम price पर, when price is 2, price is 4, you can see here in both the prices market demand is more than market supply. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. तो यहाँ पर हम देखेंगे डिमांड इज मोर देन सप्लाई. ये वाली कंडीशन यहाँ पर आ रही है. और मीन्स देयर इज द एक्सेस डिमांड. इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सेस डिमांड व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई. एंड आफ्टर 6 द प्राइस व्हेन इंक्रीजेस, देन वी कैन सी, यहाँ पर हम देखते हैं सप्लाई यहाँ पर 80 है और डिमांड इज 40. सप्लाई इज 100, डिमांड इज 20 ओनली. तो यहाँ पर जो हमें कंडीशन मिल रही है दैट इज सप्लाई इज मोर देन डिमांड. यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है. तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे एक्सेस सप्लाई. इसको हम एक्सेस सप्लाई कहते हैं, इसको हम एक्सेस डिमांड कहते हैं. तो यहाँ पर मार्केट इन दोनों पर भी इक्विलिब्रियम में नहीं है और इन दोनों में भी इक्विलिब्रियम में नहीं है. मार्केट इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा? जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो दैट इज द एट द प्राइस 6. व्हेन वी शो दिस शेड्यूल ऑन अ ग्राफ, देन वी विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ, बिकॉज वी ऑल नो दैट डिमांड कर्व, जब हम डिमांड कर्व बनाएंगे, मार्केट डिमांड कर्व, it is a downward sloping curve due to inverse relation between price and demand. प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है. दैट्स व्हाई मार्केट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. सो दिस इज आवर डीडी डिमांड कर्व. 10 when here we have taken the price, on the y axis हमने प्राइस ली है, on the x axis as we all know we show the quantity. Price is 2, 4, 6, 8, 10 according to the schedule we have taken. और हमने यहाँ पर quantity show करिए 20, 40, 60, 80, 100. When we plot the graph, the 2, 4, 6, 8, 10 हमारी price है. Market demand is 2 price per, market demand is 100. Then 4 price per, it become 80. Then it becomes 60, then it becomes 40, and then 20. So it is a downward sloping curve we have got of demand. And similarly we have plotted the supply curve. Supply curve is SS curve, and we all know price और supply में direct relation है. इसलिए supply curve हमने जब बनाया तो we have got a upward sloping curve that is 20, 40, 60, 80 and 100. Both the curves we all know about these: demand curve, downward sloping, supply curve, upward sloping curve. And here you can see at the price 6, both demand and supply curve intersect each other, because at this price demand is equals to supply. यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहे हैं, तो हमारी मार्केट प्राइस डिसाइड, जब जहां पर डिमांड और सप्लाई का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम. मैंने ये ई से इसको डिनोट किया है. ई इज द पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम. एंड व्हेन वी ड्रॉ द लाइंस वी विल गेट दिस इज द equilibrium quantity, and
this is the equilibrium price. So 6 is the equilibrium price and 60 is the equilibrium quantity and E is the point of market equilibrium. So I think it is clear to you how we get the market equilibrium and how price is determined in the market by using the forces of demand and supply. डिमांड और सप्लाई मार्केट में वर्क करती हैं ये फोर्सेस कंटिन्यूसली. दैट्स वाई आवर प्राइसेस फ्लक्चुएट, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है. दैट डिपेंड्स ऑन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. So we have seen how the market equilibrium is determined and how equilibrium price and equilibrium quantity is determined in the market under perfect competition. Here I have made the demand curve. It is downward sloping curve. It is upward sloping curve is the supply curve, and E is the point where market equilibrium is there. And at point E, when we make the lines on price, here we get OP is the equilibrium price corresponding to the market equilibrium point, and OQ is the equilibrium quantity corresponding to the market equilibrium point. तो ये corresponding हमने जब lines की draw करी तो हमें equilibrium quantity OQ को हम कहते हैं equilibrium quantity and OP is the equilibrium price and E is the market equilibrium. Now what happen if price prevails in the market is more than the equilibrium price? ये हमारी equilibrium price है OP. OP से प्राइस ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती है? We will discuss about this. और अगर prevailing प्राइस ज़्यादा हो जाती है then again market स्टार्ट्स, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो है एक्सटेंशन होगा, एंड बाय दैट डिमांड और सप्लाई फोर्सेस काम करेंगी और अगेन मार्केट हम देखेंगे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. सो इफ प्राइस ऑन द मार्केट इज OP1, अगर प्राइस OP1 है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल प्राइस इज OP1, इट इज मोर देन मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस. तो यहाँ पर हम देखेंगे एट दिस पॉइंट P1 ये हमारी डिमांड है, दिस इज द डिमांड एंड इट इज द सप्लाई. सप्लाई यहाँ तक है और क्योंकि ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है. डिमांड इज दिस वन एंड सप्लाई इज दिस वन. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसकी कंडीशन आ रही है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड. दिस कंडीशन जहाँ पर हमारी सप्लाई ज़्यादा हो रही है डिमांड से, अभी मैंने आपको बताया दैट इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. व्हेन देयर इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, जब सप्लाई किसी चीज की ज्यादा होती है और डिमांड उसकी कम रहती है तो क्या होता है, प्राइस फॉल्स, प्राइस फॉल हो जाती है क्योंकि डिमांड तो है कम, सप्लाई है ज्यादा. तो अपने आप प्राइस यहाँ पर फॉल होगी और जैसे ही प्राइस फॉल होगी देयर विल बी द एक्सपेंशन इन द डिमांड. प्राइस के कम होते ही डिमांड में एक्सपेंशन हो जाएगा A to E और प्राइस के फॉल होते ही सप्लायर सप्लाई कम कर देंगे और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा B to E. B to E हम देखेंगे there is the contraction of supply by the suppliers, contraction of supply, and A to E is the expansion of demand, and we can see here it leads to the market again come to the इक्विलिब्रियम पॉइंट E. यहाँ पर आ जाएगा मार्केट, ये फोर्सेस वर्क करेंगी सप्लाई और डिमांड की और मार्केट वापस से अपने इक्विलिब्रियम पर सेटअप हो जाएगा. सिमिलरली इफ वी सी द second situation, that is if price prevailing in the market is less than the equilibrium price, then what happen, how market get its equilibrium. तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस पहले तो OP थी, equilibrium price, now it become OP2.
प्राइस कम है मार्केट में, तो क्या होगा, व्हेन प्राइस इज OP2, प्राइस कम होने से सप्लाई तो हो रही है कम, सप्लायर्स विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन सप्लाई द गुड्स, तो सप्लाई तो है कम और डिमांड ज्यादा है, क्योंकि प्राइस कम है तो डिमांड यहाँ तक है, Q तक. And here is the situation of excess demand arises. P to Q is the situation of excess demand. तो यहाँ पर हम देखेंगे जब excess demand हो रही है means demand is more than supply. जब demand किसी भी commodity की ज़्यादा है compared to the supply, then what will happen? Price increases. Price क्या हो जाती है उसकी, इंक्रीज हो जाती है. तो प्राइस इंक्रीज होने से, प्राइस जैसे ही इंक्रीज होगी, देयर विल बी द एक्सपेंशन ऑफ द सप्लाई. प्राइस के बढ़ते ही सप्लायर्स ज्यादा सप्लाई करने लगेंगे एंड सप्लाई विल इंक्रीज फ्रॉम P to E. PE इज द एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड जैसे ही प्राइस ज्यादा होगी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. एंड वी ऑल नो सेम द डिमांड कर्व पे जब मूवमेंट होते हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, सेम सप्लाई कर्व पे होते हैं तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमें पता है, हम वी ऑलरेडी हैव रेड इन द चैप्टर्स डिमांड एंड सप्लाई. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया जैसे ही प्राइस बढ़ गई, यहाँ से Q से QE वी कैन से QE क्या है, इट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी. डिमांड में कमी आ गई, सप्लाई बढ़ गई, अगेन मार्केट कहाँ पर आ गया, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट E पर. इस तरह से हमने यहाँ पे बताया कि इफ प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द मार्केट इज मोर और लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, देन द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वर्क्स देयर. और डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज इस तरह से काम करती हैं कि अगेन मार्केट जो है दैट कम्स टू द इक्विलिब्रियम.